ذرا محل کو دیکھو ہم زمین کے سر میں رہتے ہیں۔ صرف گلگت بلتستان کے بعد نہیں، اوور آل پاکستان کے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ آپ گلگت بلتستان سے آپ کا تعلق ہے، آپ یہاں جاب نہیں کر سکتے۔ مقامی قبائلیوں نے جو نا ڈوگرا راجے کے خلاف ایک عظیم جدوجہد کر کے اس علاقے کو جو نا آزاد کروایا۔ ہم اپنا دیش جی بی کے ایسی پیکر میں رہتے ہیں، ہم اپنا دیش جی بی کے ایسی پیکر میں رہتے ہیں، ذرا محل کو دیکھو ہم زمین کے سر میں رہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں وہ آپ کا ہورس رضی اللہ، آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ایک نیو ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں بہت ہی ایک اہم ولاگ لے کے آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوں۔ وہ ولاگ ہے گلگت بلتستان کی آزادی کا دن۔ گلگت بلتستان نے پاکستان آزاد ہونے کے 4 مہینے بعد اپنی مدد آپ کے تحت ڈوگروں سے جنگ لڑ کے گلگت بلتستان آزاد ہوا، اور گلگت بلتستان کے ہمارے جو بڑے ہیں، آباء و اجداد ہیں، جنہوں نے قربانیاں دیں، جو کچھ بھی کر کے گلگت بلتستان کو حاصل کر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، اور ہمارے جو بڑے ہیں جس نے گلگت بلتستان کو آزاد کرنے میں اپنی قربانی دی، جو شہید ہوئے، ان سب کو ہم عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، انہوں نے گلگت بلتستان کی محبت میں گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنایا، پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ 75 سالوں سے اب تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ نہیں بنایا جا رہا، ہمیں آئینی حقوق نہیں دیے جا رہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے حکمران ہیں یا ہمارے گلگت بلتستان کی جو لیڈرشپ ہے، موجودہ لیڈرشپ ہے، جو سابقہ لیڈرشپ ہے، کون ہے؟ اس کے بارے میں ہم ہمارے جو پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں، کچھ ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ جی تو ناظرین، ابھی ہم فیڈرل اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس میں موجود ہیں۔ یہاں پر گلگت بلتستان کے جشن آزادی کے موقع پر ہمارے ساتھ ٹیچرس بیٹھے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی، صرف گلگت بلتستان کے نہیں ہیں، پنجاب کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، سارے صوبوں کے اسٹوڈنٹس یہاں پر گلگت بلتستان کی جشن آزادی کے موقع پر ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ تو ہم یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فیڈرل اردو یونیورسٹی کے ایکس ڈین پروفیسر سر خرم صاحب ہمارے سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں اب تک جو آئینی حق ہے وہ کیوں نہیں ملا، اور اس کے بارے میں، اس جشن آزادی کے بارے میں یہ سر ہمارے لیے اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم بھائی، سب سے پہلے تو جو نا ناردرن ایریاز کی آزادی کسی جو نا حکومت کی سپورٹ سے یا کسی بیرونی جو نا سپورٹ سے آزادی حاصل نہیں ہوئی۔ مقامی قبائلیوں نے جو نا ڈوگرا راجے کے خلاف ایک عظیم جدوجہد کر کے اس علاقے کو جو نا آزاد کروایا۔ تب سے لے کر 1964 تک وہ علاقہ جو نا انڈیپینڈنٹ رہا، کسی حکومت کی عملداری نہیں تھی۔ لوگ خود چاہتے تھے کہ ہمارا الحاق پاکستان سے ہو، ٹھیک ہے جی۔ کسی حکمران نے جو نا اس علاقے کو جو نا الحاقی حیثیت نہیں دی، اور آج بھی نقشے میں جو نا اس کو جو نا ڈسپیوٹڈ ایریا جو نا یہ کہ ڈکلیئر کیا ہوا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو نا یہ کہ کا ہم حصہ بنے، جزو بنے، اور یہ کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا کا جو نا مین گیٹ ہے شمالی علاقہ جات، ٹھیک ہے جی، مین گیٹ ہے۔ اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ اگر فیوچر میں کوئی جنگ لڑی نا تو وہ یعنی اس مین گیٹ کو جو نا یہ کہ جو بھی جو نا حکومت، جو بھی ملک قابض ہوگا اس کی فتح یقینی ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ڈوگرا راجے سے آزادی حاصل کی، اور اس کی باضابطہ ایک منظم فورس تھی، اس منظم فورس کو جو نا کہ کشمیر تک اس کا پیچھا کیا، ان کو جو نا ختم کیا، تختہ الٹا اس کا۔ اس کے بعد جناب علی آزادی حاصل کی، اور جو نا تب سے لے کر اب تک جو نا 1964 میں ایوب خان نے اس کو جو نا پاکستان میں شامل ضرور کیا، لیکن آئینی حق نہیں دیا، اور وہ آئینی حق آج تک نہیں ملا ہوا۔ آئینی حق سے مراد یہ کہ قومی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے، آئینی حق سے مراد یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اپیل کی نمائندگی نہیں ہے، ایک جو نا لوکل سیٹ اپ بنا کر رکھا ہوا۔ اور جو نا یہ کہ اس وقت دیکھو نا چائنا جو کوریڈور ہے وہ شمالی علاقہ جات سے جو نا گزرتا ہوا چائنا جاتا ہے، تو اور وہ جو سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کے علاوہ مین گیٹ جو نا شمالی علاقہ جاتا ہے۔ تو ہماری حکومتوں کو سوچنا چاہیے، ہمارے مقامی لوگوں کو سوچنا چاہیے، ایسی قیادت کو ڈیولپ کرنا چاہیے جو ان حقوق کے لیے اسٹرگل کر سکے، خصوصاً نوجوان طبقہ، طالب علم طبقہ اس میں ہر اول رول پلے کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے
ज़माने तालिब इल्मी में मैंने पूरे होल नॉर्दर्न एरिया की तंजीम बनाई थी, गिलगित बल्तिस्तान दियमत स्टूडेंट फ्रंट। 10 साल तक उसका मैं मरकज़ी सदर रहा। हरीपुर जेल जो है कि हमें डाला गया गिलगित से उठाकर, वहाँ 14 दिन जो है कि हम जेल में रहे। तो जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, किससे कहानियों से कुछ भी नहीं होता, ठीक है जी। सिर्फ सोचने से जो ना तो मकासद हासिल होते हैं और न ही जो ना अपने हुकूक हासिल होते हैं, अमली जद्दोजहद करनी पड़ती है। सर अभी मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि अभी तक डोगरा राज से हमने आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, इसमें अभी हमारी जो आइनी हुकूक नहीं देने की वजह हमारे जो मुकामी लोग हैं या हमारी ऐसी कोई लीडरशिप अभी तक पैदा नहीं हुई जिसकी वजह से हमें आइनी हुकूक नहीं मिल रहे? मैंने पहले क्वेश्चन में इसकी वजाहत कर दी थी। मकामी लीडरशिप भी नहीं है, लोगों में जो ना ये कि जज्बा नहीं है, इसके अलावा जो ना हुकूमतें भी नहीं चाहती। हुकूमतें असल में जो ना बैनुल-अक़वामी सतह पर तो उस इलाके की अहमियत को समझा जाता है, और ये वो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो ना कि हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा न बने, ठीक है जी। खुसूसन जो ना चाइना को काउंटर करने के लिए साम्राज्यी क़ुव्वतें चाहती हैं कि वो मुतनाज़ है इलाका, ठीक है जी। तो उस मुतनाज़ होने की सूरत जो ना नुकसान होता है जो ना शुमाली इलाक़ाजात को। तो इसके लिए मकामी क़यादत को डेवलप होना चाहिए। कुछ क़यादतें उभरी हैं, लेकिन वो जो ना है कि वो या तो आलाकार के तौर पर किसी सुपर ताकत के या किसी जो ना पाकिस्तान दुश्मन उनसर के, तो वो चीज़ें जो ना अच्छी क़यादत को डेवलप होना नहीं दिया, ठीक है जी। अब देखो ना, छोटी सी मिसाल ले लें, हर हुकूमत वहाँ अपना जो ना एक मोनोपोली कायम करके हुकूमतें तो कायम करती हैं, लेकिन हुकूक देने के लिए जो ना तैयारी नहीं है। अभी PTI जो ना गवर्नमेंट वहाँ मौजूद है, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है हमारा दूर पार का रिश्तेदार है, ठीक है जी। उसकी जो ना एक कैबिनेट में हमारे अपने लोग, मेरा छोटा साला उसका कोऑर्डिनेटर है, लेकिन वो बस अपने चक्कर में लगे हुए हैं। वहाँ से इमरान खान फ़ोन करता है तो जो ना कि गाड़ियाँ लेकर जो ना ये कि पैसे लेकर जो ना आ जाते हैं, उसके हिस्सों में जो ना शुमार होते हैं वो उसकी जो ना एहतजाज में। तो इस तरह ना क़यादतें उभरती हैं, ना इलाके को हुकूक मिलते हैं, ठीक है जी। और ना ही जो ना है कि पाकिस्तान के साथ आपका जो ना आइनी इल्हाक मुमकिन है। इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, शऊर देना पड़ेगा, और शऊर जो ना हम लोगों में है कहाँ, ठीक है जी। यानी अपने किसी आगे उभरते हुए किसी ना तो आलिम को आगे बढ़ना देते हैं, ना किसी जो है कि उस्ताद को आगे बढ़ना देते हैं, ना किसी मुफक्किर को पिनपना देते हैं, ना ही किसी सोशल वर्कर को पिनप देते हैं। कहते हैं कि फलां जो है बड़ा मार दो जी, ठीक है जी। वो बड़ो जो है 3 महीने गिना लिए, वो शिया हो या सुन्नी हो या आगा खानी हो, उसको जो ना अपने ही लोग मार देते हैं। भाई आप जो है किसी तरह लीडरशिप की मिसाल ले लें, कुछ लीडर अच्छे गुजरे हैं माजी में, उनको भी जो ना इसी तरह जो ना रांदे दरगाह किया गया। तो ये अमूमी सोच नहायत ही जो ना स्टूपिड है, इसको चेंज होने की ज़रूरत है, और नौजवान नस्ल ही कर सकती है इसके लिए। ठीक है सर, शुक्रिया सर। जी तो नाज़रीन, अभी हमारे साथ इस्लामिक हिस्ट्री के टीचर मंजूर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये आवाम को क्या पैगाम देते हैं और जो हमें अभी तक आइनी हुकूक नहीं मिले इसके बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अभी हम अब तक हमें 75 साल गुजर गए, हमें आइनी हुकूक अभी तक नहीं मिले, इसके बारे में आप लोगों को क्या कहेंगे? और जो मौजूदा गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट आती जाती रहती, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आपका सवाल है अवाम पर, मेरे सामने जो मुखातिबीन है, मेरी जो नई नस्ल है वो जवानान है, तो मैं जवानों से कुछ कहना चाहता हूँ कि हुकूक का नहीं मिलना सबसे पहले मैं और आप ही सबब हैं। जैसे कि आपने बात की गिलगित बल्तिस्तान की, आप ओवरऑल देखें पाकिस्तान को कौन से हुकूक मिल रहे हैं। आप अपने जो है लिटरेसी को इतना हाई लेवल पे ले जाएं, अपने रिसर्च को इतने हाई लेवल पे ले जाएं कि हम खुद पाकिस्तानी हो के भी सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान के फ़ैसले कहाँ हो रहे हैं, और उसके बाद जो है ना जो अंदर काम हो रहा है वो कहाँ का हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान तो बात की बात है। अब गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसकी मेन वजह अवाम नहीं, नई नस्ल है। अगर आज भी हम हुकूक नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले सकते हैं तो मैं और आप ही हैं। मैं और आपको सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के कौन कौन से इदारों से हमें ठुकराया जा रहा है। इसकी मेन वजह क्या है? आपका आईडी कार्ड दिखाया जाता है कि आप गिलगित बल्तिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, आप यहाँ जॉब नहीं कर सकते हैं। जॉब नहीं करने की वजह सिर्फ आईडी कार्ड जेब में रखने का नहीं है, बल्कि मैं और आपका जो तशख़्ख़ुस है गिलगित बल्तिस्तान से उसको सामने रखते हैं। तो आप जो है ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आजकल सोशल मीडिया में इतना हाईलाइट करें अपना हक़ मांगने के लिए, और हक़ भी मांगने का तरीका क्या है? आपका रिसर्च होना चाहिए। आप जो भी बात कर रहे हो अथेंटिक व्यूज़ और अथेंटिक प्रूफ के ज़रिए ही करें। उसके बाद जो है आप अपने जो लोकल गवर्नमेंट है उसके जो नुमाइंदे हैं उनको फोर्स करें, और जो वफाक में बैठे हुए हैं उनसे फोर्स करके अपना हक़ मांगने की कोशिश करें। वैसे हम जो है गिलगित बल्तिस्तान के नहीं पूरे पाकिस्तान के हैं,
एज़ ओवरऑल पाकिस्तानियों को मेरा एक हिस्ट्री का एक रिसर्चर हूँ, ये पैगाम है कि हमारे जो फ़ैसले हो रहे हैं वो जो है ना पाकिस्तानी नहीं कर रहे हैं, पढ़ते लिखते पाकिस्तान में फ़ैसले कहीं और कर रहे हैं। तो आज जीबी का भी यही मसला है कि जो भी हुकूमत चाहे पीपी की हो, चाहे नून की हो, चाहे पीटीआई की हो, कि ये जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब ने एक बड़ा अच्छा इशारा दिया कि एक फ़ोन पे जो है ना हम लब्बैक कहते हैं, यानी उसके आगे आ जाते हैं, चाहे हमें जिससे जैसे भी यूज़ किया जाए, हमें मिस यूज़ किया जा रहा है। और नई नस्ल जो है, जैसे आप लोग हैं, ये इस्तेमाल में नहीं आएंगे, आप यूज़ में नहीं आएंगे, तो हम फ्यूचर के लिए अपने हुकूक भी ले सकते हैं और अपना हक भी ले सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने रिसर्च को बढ़ाएं, अपने ऑथेंटिक प्रूफ के ज़रिए काम करें। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें हक ज़रूर मिलेगा। सर आपकी बात में समराइज़ किया जाए तो ये निकलती है कि हमारे जो यूथ हैं उनके अंदर शौर पैदा करना चाहिए, उनको आगे निकलना चाहिए। अगर कि हम पाकिस्तान के अंदर बाकी सूबों के निस्बत देखें तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट पाकिस्तान में गिलगित बल्चिस्तान का ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐसी कोई क़यादत क्यों नहीं पैदा हो रही कि जो हमारे आईनी हुकूक भी दिलाएं और पाकिस्तान के साथ जो हमें हक़ मिलना चाहिए वो हक़ भी मिले। आपके सवाल में ही जवाब है, क्यों नहीं मिलना चाहिए और वो लीडर क्यों नहीं बन सकता है। हमारे अंदर पोटेंशियल है, जहाँ से हम पढ़ के जाते हैं वो हमें ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे आप इक़्तिसादी ले लें, सियासी ले लें, जैसे कि आप भी कहें कि किसी भी जो ना फ़िरका कहें या मज़हब कहें, हमें किसी न किसी तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो हम जो है ना मेन मरकज़ से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अपना जो पोटेंशियल जो हम वहाँ से लेकर आ रहे हैं, यहाँ कहीं और दे के चले जा रहे हैं। और हमारा लिटरेसी पूरे पाकिस्तान में टॉप पे होने के बावजूद भी हम वो क़यादत गिलगित बल्चिस्तान को नहीं दे रहे हैं और अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते हैं। तो आज ये सिर्फ आज की बात नहीं है, 100 साल बाद के लिए भी जाएँ, ऐसे ऐसे हीरे वहाँ से निकलेंगे, पर वो हीरों की कोई कीमत उसमें मार्केट में नहीं होगी। ठीक है सर, शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। और हमारे साथ अभी जो PSF के साबिका सदर है बख्शियर साहब, उनसे बात करते हैं। वो इस हवाले से गिलगित बल्चिस्तान की जश्न आज़ादी के हवाले से क्या मैसेज देते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी सबसे पहले बहुत बड़ी नेमत है। इंसान की जब आज़ादी होती है वो खुशियाँ मनाता है। आज हमारा दीन है, आज़ादी का दीन है और खुशियों का दीन है। गिलगित बल्चिस्तान के जो भाई हम काफ़ी टाइम के बाद आपस में मिले हुए और हमें खुशी के दिन हमने सब ने सेलिब्रेट किया है। और आप लोगों का भी शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया, हमारे पास आया, हमारा आवाज़ को उजागर किया है। देखो, आज़ादी के लिए तो सब हमारे बुज़ुर्गों ने वहाँ इतनी मेहनत की अपने वो ज़माने में। बाद में हम पाकिस्तान से हमने ख़ुद इलाक़ किया, क्योंकि इलाक़ का जो बुनियादी वजह हम मुसलमान थे और पाकिस्तान इस्लामी मुल्क था। इस वजह से हमने इलाक़ किया और हमने पाकिस्तान में शमूलियत किया, क्योंकि वहाँ अभी इसके बाद हमें जो ज़्यादा पावर नहीं मिली है, पावर की वजह हमारे सब गिलगित बल्चिस्तान आपस हम इत्तेहाद नहीं, इस वजह से पावर नहीं मिली है। क्योंकि हमारे एक सेक्टेरियन के इशू से हमें आपस में लड़वाया गया। कुछ चल रहा है कि सियासी पार्टियाँ कह रही हम बुनियादी हुकूक देंगे, लेकिन अभी तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ। थोड़ा सा कुछ हुआ है, वो हमारी पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। साफ़ी साहब, ये कंफर्म रिपोर्ट है, क्योंकि जरदारी साहब ने उसमें थोड़ा कुछ दिया, हमारे वज़राला का सिटिप दिया है। पहले तो पाकिस्तान, हम 15 साल से मैं कराची में रहा हूँ, हमें पहले गिलगित का नाम दिया, वो समझ KPK का है, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में वज़राला सिटअप दिया, हमारे ऑफिशियल कैबिनेट का सिटअप दिया। इस वक्त पूरी पाकिस्तान में गिलगित का एक पहचान है। ये हमारे जो GB के लोग हैं उनसे एक प्लेटफार्म में लाने के लिए, अपने हुकूक लेने के लिए हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। इसकी बुनियादी हिकमत अमली ये होना चाहिए ना, वहाँ पे सब एक सेक्टेरियन इशू नहीं, गिलगित के बुनियादी मकसद सेक्टेरियन इशू है। जब तक वहाँ ये इशू ख़त्म नहीं हुआ तो हम आगे नहीं आते। ये एक साजिश के तहत करवा रहे हैं, मजहबी इशूज़ करवा रहे हैं, कभी किस के उस वजह से हमारा कोई इत्तेहाद ख़त्म करवा रहे हैं। जब हम हमारे गंदम का इशू है बहुत बड़ा गिलगित बल्चिस्तान में, हम पूरा एक है इस वक्त। पिछले साल आप देखा होगा कितना रैली, कितना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे थे वहाँ गिलगित बल्चिस्तान में, और हमारा पूरा इशू से गिलगित बल्चिस्तान आवाज़ से पाकिस्तान में वो एक्सेप्ट हुआ गिलगित के कोटे का, ये गंदम का कोटे का इशू पे। तो इस वजह से हम सब नहीं मिले। आपने बोला यहाँ पर कुछ साजिशी अनासिर है जो हमें मिलने नहीं दे रहे, तो आप साजिशी अनासिर हमारे GB के अंदर के लोग हैं या बाहर के लोग? कुछ यहाँ पे इसमें अंदर के लोग भी होते हैं, बाहर के लोग भी होते हैं, वो आप खुद समझदार, उसको आप खुद समझो। एक इशूज़ की बुनियाद पर हमें आगे नहीं आने दे रहे, क्योंकि हम सब एक हुआ था, हमारा हर इशूज़ एक होता है। अभी गंदम का इशू आप खुद देखा होगा कितना बड़ा इशू था, पूरे गिलगित बल्चिस्तान एक हुआ था, वो इशू हमारा हल हो गया। अभी भी इशू चल रहे हैं, लेकिन हमें एक होना देते नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी से हम कॉलेज से हमारा स्टूडेंट फारिग होते हैं,
यहाँ चाहे कोई अच्छे मैसेज देते नहीं, कोई मैसेज दे रहे, कोई वहीं इशूज़ पे, मजहबी इशूज़ पे हम वहीं फिट होता है। जी तो नाज़रीन, अभी ये इमदाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी इमदाद भाई, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वैसे प्लेटफॉर्म से आज हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है उसका मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने सारे जीबी के ब्रदर्स को। तो दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात जो है, दुनिया के अंदर जो चेंजिंग्स आ रही है, इस बात को आप सब ने नोट करना है। दुनिया के अंदर जो चेंजिंग्स आ रही है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में आ रही है, यानी कि यूनिटी की शक्ल में आ रही है। जब तक हमारे पास यूनिटी नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसका अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिसालें आप ले लें, दुनिया के अंदर आज जो दुनिया को ये चल रही हैं जिस बेस के ऊपर, वो ऑर्गेनाइजेशन के बेस के ऊपर दुनिया चल रही है। दुनिया के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बुनियाद पर ये दुनिया का जो है हमारा सेटअप चल रहा होता है। इस वजह से मैं आपको हमारे जितने भाई हैं उन सबको ये कहूँगा, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, हमारे इश्यूज़ जो पिछले दौर में थे ऐसे ही रहेंगे, ताहयात ऐसे ही रहेंगे। तो प्लेटफॉर्म बहुत लाजमी है। और प्लेटफॉर्म के साथ साथ ये दूसरा जो हमारे पास मेन पॉइंट, मेन इशू, जैसे बख्शर भाई ने बताया कि हमारे जो लीडरशिप की कमी है। लीडरशिप अब कहाँ से आ रही है? जब तक लीडरशिप, ये हम न्यू जनरेशन से लीडरशिप निकलती है। जब ये न्यू जवान खड़े होते हैं, न्यू जनरेशन खड़ी होती है, तो इनकलाब आ जाता है। इनकलाब आम लोगों से नहीं आता है, यहीं यूथ से इनकलाब आएगा, यहीं न्यू जनरेशन से इनकलाब आएगा। तो मैं अपने तमाम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप सब कोशिश करें, एक प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश करें, ताकि हम कुछ हासिल कर सकें, ताकि अपने आने वाले नस्लों के लिए और ये प्रेजेंट हमारे इश्यूज़ हैं उनको हल करने के में हम कामयाब हो जाएंगे। आपसे एक सवाल है, मुख्तसर जवाब दे कि ये हमारे आइनी हकूक़ नहीं मिलने की वजह हम खुद हैं या कोई और है? इसका मेन वजह जो है, आज की न्यू जनरेशन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हैं, कोई दूसरा आपको नहीं मारता है। ये एक बहुत क्या कहते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है कि लोहा जंग खुद पकड़ता है, लोहे को कोई काट नहीं सकता है। सेम इसी एग्जांपल के साथ हम अपने आप को काटते हैं। हमारे लोग ही जिम्मेदार हैं कि भाई ये अपने हुकूक हासिल नहीं कर पा सकते, अपने स्ट्रगल नहीं कर पा सकते। ठीक है, शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग, और ये सवाल हम करते रहेंगे जब तक हमारे अंदर सांस है। हमारे जो नस्ल न्यू जनरेशन जो आएगी वो भी ये पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये सवाल करता रहेगा कि हमें आइनी हुकूक क्यों नहीं दी जा रहे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपने मेज़बान रज़ीउल्लाह को। अल्लाह हाफ़िज़।